مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں کی قیادت نے سر جوڑ لیا۔ مسلم لیگ نون نے اپنی نمبر گیم پوری کرنے کے لیے سرگرمیاں تیز کر دیں۔ آزاد امیدواروں کو راغب کرنے کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ مرکز اور پنجاب میں کون حکمرانی کرے گا؟ حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتیں متحرک۔ مسلم لیگ نون نے اپنی نمبر گیم پوری کرنے کے لیے سرگرمیاں تیز کر دیں۔ آزاد امیدواروں کو راغب کرنے کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب ریٹرننگ افسران کا کام مکمل ہو گیا۔ امیدواروں کے فارم 49 جاری کر دیے گئے۔ اب دوبارہ گنتی یا دیگر مسائل کے لیے الیکشن ٹریبیونل کا رخ کرنا ہوگا۔ الیکشن کے بعد دوبارہ گنتی کرانے والے میدان میں آ گئے۔ حافظ ممتاز، عادل پرویز گجر، حافظ عطا اللہ، شہید داؤد بٹ، دیگر امیدواروں نے دوبارہ گنتی کی درخواستیں دائر کر دی۔ ہارنے والے امیدواروں کے مطابق وہ فارم 45 میں جیت رہے تھے، تاہم فارم 47 میں انہیں ہرا دیا گیا۔ کون سی جماعت کس کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ پنجاب اور مرکز میں حکومت بنانے کے لیے آزاد امیدوار توجہ کا مرکز بن گئے۔ مسلم لیگ نون نے آزاد امیدواروں کو پارٹی میں شامل کرنے کے لیے ٹاسک سونپ دیے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ کے پی پی 126 اور 128 کے امیدواروں نے الیکشن کمیشن میں اعتراضات دائر کرا دیے۔ ادھر توبہ کے حلقہ این اے 106 صوبائی اسمبلی کی پی پی 121 اور 122 کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہو گئی۔ جنگ کے پی پی 126 اور 128 کے امیدواروں نے الیکشن کمیشن میں اعتراضات دائر کرا دیے۔ اعتراضات خالد سرگانہ اور اسلم بھروانا نے جمع کروائے۔ الیکشن کمیشن نے فریقین کو 15 فروری کے روز طلب کر لیا۔ اعتراضات پی پی 128 سے خالد سرگانہ اور پی پی 126 سے اسلم بھروانا نے داخل کرائے۔ دونوں امیدواروں کے کونسل کے طور پر صدر بار ایڈوکیٹ منیر احمد سدانہ پیش ہوئے۔ امیدواروں کی جانب سے انتخابی عمل کے شفاف ہونے پر شکوک کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ توبہ ٹیک سنگھ میں امیدواروں کی جانب سے دوبارہ گنتی کی درخواست کا معاملہ۔ قومی اسمبلی کے این اے 106، صوبائی اسمبلی کے پی پی 121 اور 122 کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوگی۔ این اے 106 سے خالد نواز سدھرائج نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی۔ این اے 106 سے جنید انوار چودھری 1,37,629 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ آزاد امیدوار خالد نواز نے 1,36,924 ووٹ حاصل کیے۔ پی پی 121 سے سعید احمد سعیدی نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی۔ پی پی 121 سے امجد علی جاوید نے 58,432 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ پی پی 121 سے آزاد امیدوار سعید احمد سعیدی نے 58,383 ووٹ حاصل کی۔ پی پی 122 سے محمد ایوب گادھی نے ووٹ کی دوبارہ گنتی کی درخواست دی تھی۔ محمد ایوب گادھی نے دوبارہ گنتی کی درخواست ریٹرننگ افسر انور بیگ کو دی۔ پی پی 122 سے آزاد امیدوار خاور شیر گادھی نے 71,414 ووٹ لے کر پہلے کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد ایوب گادھی نے 69,687 ووٹ حاصل کیے۔ چنیوٹ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا۔ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن انتظامیہ فلور ملز کی کروڑوں روپے کی نادہندہ نکلی۔ فلور ملز نے آٹے کی سپلائی بند کر دی۔ 15 روز سے آٹا نہیں مل رہا، شہریوں کی دہائی۔ چنیوٹ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن انتظامیہ فلور ملوں کی ڈیفالٹر نکلی۔ فلور ملز نے 2.5 کروڑ روپے کی عدم ادائیگی پر آٹے کی سپلائی بند کر دی۔ 15 روز سے آٹا نہیں مل رہا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ آٹا نہیں ملا جی، وہ کہتے ہیں کہ ابھی آئے نہیں رہا آٹا۔ جو یہاں آتے ہیں، ہم ملا سوی کالونی چنیوٹ سے آتے ہیں، یہ ہمارے گھر کے قریب یوٹیلیٹی اسٹور یہی پڑتا ہے، تو جب بھی آتے ہیں یہاں 650 کا تھیلا ملتا ہے۔ ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں، یہاں سے آسان سے خرید سکتے ہیں۔ باہر بازار سے لے تو 1500 روپے کا تھیلا ہے، تو جب یہاں پہنچتے ہیں یہاں تھیلا ملتا نہیں ہے۔ چنیوٹ میں خواتین سستے آٹے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر خوار ہونے لگیں۔ کہتی ہیں 20 روز آٹا نہیں ملتا، اگر مہینے میں کبھی کبھار ایک بار آٹے کے 30 تھیلے آئیں تو آتے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایریا انچارج کا کہنا تھا کہ آٹے کی شارٹیج کا مسئلہ ہے، فلور ملوں کو گندم ایشو نہیں ہو سکی۔ ہماری کوشش جاری ہے، اس مسئلے کو جلد حل کر لیں گے۔ کان میں فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ تعمیراتی شعبے کے لیے اچھی خبر، سیمنٹ کی قیمت میں 20 روپے فی بوری کمی کر دی گئی۔ قیمتوں میں اضافے کے باعث گزشتہ ماہ سیمنٹ کی کھپت میں سالانہ بنیادوں پر 15% کمی ریکارڈ کی گئی۔ مہنگائی کے باعث سکڑتے تعمیراتی شعبے کے لیے اچھی خبر، سیمنٹ کی قیمت میں 20 روپے کمی، فی بوری کی قیمت 1220 روپے ہو گئی۔ تعمیراتی انڈسٹری سے جڑے کاروباری افراد نے سیمنٹ کی قیمت میں کمی کو عارضی ریلیف قرار دیا ہے۔ نئی حکومت کی تشکیل کے بعد قیمت پھر سے بڑھنے کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ مارکیٹ میں جو کام کے حالات ہیں وہ اس وقت تقریباً جو ہے وہ آپ 100 میں سے لگا لیں 10 سے 15% کام چل رہا ہے۔ بقایا ہمارے پاس روز کی بیسس کے اوپر لیبر کے لوگ آ رہے ہیں کام کے پوچھنے کے سلسلے میں۔ کام جو ہے وہ زیادہ تر ڈیڈ اور بند پڑے ہیں بالکل۔ بڑھتی مہنگائی نے تعمیراتی سیکٹر میں جاری ترقیاتی کاموں کو بریک لگا دی ہے۔ سیمنٹ کی کھپت سالانہ بنیادوں پر 15% کم ہو گئی۔ تاجر کہتے ہیں تعمیراتی شعبہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ جو گھر تعمیر ہو رہے ہیں وہ لوگوں کی آخری سرمایہ کاری ہوگی۔ 3 ماہ سے ایسے ہی چل رہا تھا اور آج یہ الیکشن کے بعد امید جاگی تھی کہ کام جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ اٹھے گا،
लेकिन अभी तक वो सूरत हाल वैसे की वैसे ही डेड लेवल पे पड़ी है, वो उठा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इलेक्शन के बाद भी। और सुनने में ये भी आया है कि सीमेंट का रेट 1220 से अब इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है वो 1250 पे वापस चला जाएगा। ताजिर कहते हैं नई हुकूमत ने तामीराती सेक्टर को बचाने के लिए फौरी रिलीफ फराहम ना किया तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। खाद का बहरान बरकरार, किसान परेशान। जंग में गैर मुल्की यूरिया की तकसीम से मुताल्लिक कोई पॉलिसी तय न हो सकी। जंग में गंदम की फसल की बुआई को कई माह बीत गए, ताहम यूरिया खाद की फराहमी का अमल ताहाल शुरू न किया जा सका। काश्तकार यूरिया खाद के हसूल के लिए मंडियों और ज़राअत दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। काश्तकारों ने सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हमारी जो है ना आज गंदम काश्त हो चुकी है, तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। हमें आज जो है ना आजकल यूरिया की ज़रूरत है, तो हमें मार्केट से जो ना ज़रूरी जो यूरिया है वो मुयस्सर नहीं हो रहा, बड़े महंगे दामों मिल रहा है। किसी के पास पड़ा भी है डीलर के पास, तो वो हमें 5000 की बोरी देता है। गैर मुल्की यूरिया खाद की ज़िले में आमद के बावजूद तकसीम का अमल शुरू न किया जा सका। मौजूदा सूरत हाल के बाइस खाद का बहरान मजीद संगीन होने का खदशा है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत साजिद महमूद कासिम कहते हैं गैर मुल्की खाद की तकसीम के हवाले से अभी तक आला सतह पर पॉलिसी तश्कील नहीं दी गई, जिसके बाइस तकसीम का अमल तातुल का शिकार है। जैसा कि पिछले 3 साल से तकरीबन यूरिया खाद का जो क्राइसिस चल रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि जो भी फार्मर आएगा खाद लेने के लिए दुकानदार से, वो अपनी फ़र्द जो है ज़मीन की या फसल गंदम की गिरदौरी जो है वो दिखाएगा, उसके मुताबिक फिर उसको जो है खाद जो है दी जाएगी। काश्तकारों ने हुकूमत से मौजूदा सूरत हाल पर नोटिस लेकर यूरिया खाद की वाफिर फराहमी के हवाले से इक़दामात का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। मुल्की एक्सपोर्ट्स को साल के आगाज में मंदे का धचका। नए साल के पहले महीने मुल्की बरामदात के मनफी ट्रेंड के साथ शुरुआत। मजमूई बरामदात गुज़िश्ता 7 महीनों में ज्यादा हुई। मुल्की एक्सपोर्ट्स को साल के आगाज में मंदे का धचका। नए साल के पहले महीने मुल्की बरामदात के मनफी ट्रेंड के साथ शुरुआत। मजमूई बरामदात गुज़िश्ता 7 महीनों में ज्यादा हुई। जनवरी के अख्ताम पर दिसंबर के मुकाबले 1.13% कमी वाक़ हुई। मजमूई बरामदात 7 महीनों में 7.89% ज्यादा हुई। जनवरी में तजारती खसारा भी ज्यादा हुआ, जबकि मजमूई 14% कम हुई। साल के पहले महीने जनवरी में मुल्की बरामदात $2.790 मिलियन रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल आखिरी महीना मुल्की बरामदात $2.822 मिलियन थी। जनवरी में तजारती खसारा दिसंबर के $4.650 मिलियन के मुकाबले $4.737 रिकॉर्ड की गई। मजमूई माली साल के 7 महीनों की बरामदात में 7% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 7 महीनों $16.481 मिलियन के मुकाबले रवां $17.782 मिलियन रिकॉर्ड हुआ। तजारती खसारा भी मजमूई 7 महीनों में 14% कम हुआ। गुज़िश्ता साल $36 अरब के मुकाबले $6 अरब कम होते $30 अरब तजारती खसारा रह गया। और यहाँ आपको बताएं, अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के अहकामात पर टैक्स गुजारों के लिए बढ़ा रिलीफ। फैसलाबाद में एमए टेक्सटाइल की जानिब से टैक्स में फ्रॉड एफबीआर ने पकड़ लिया। कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और बैंक अकाउंट भी मुंजमद कर दिए गए। एमए टेक्सटाइल कंपनी ने करोड़ों रुपए की जाली सेल टैक्स इनवाइसेस जारी की। मामला सामने आने पर कमिश्नर एफबीआर ने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक टैक्स चोरी की गई रकम की अदायगी और एफबीआर से क्लियरेंस मिलने तक कंपनी को किसी कारोबार की इजाजत नहीं होगी। अपील ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के अहकामात पर टैक्स गुजारों के लिए बड़ा रिलीफ। ज़ेर स्मार्ट टैक्स केसेस में टैक्स गुजार के बैंक अकाउंट मुंजमद या इनसे रिकवरी नहीं की जाएगी। टैक्स माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान अपील ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ने एफबीआर को अहकामात दिए थे। कमिश्नर अपील के पास ज़ेर समात केस में एफबीआर अब कोई एक्शन नहीं लेगा। केस का फैसला आने पर ही इकदामात किए जाएंगे। अपील ट्रिब्यूनल की हिदायत पर एफबीआर का भिजवाए जाने वाला तमाम नोटिस वापस लेने का फैसला। टैक्स माहिरीन ने इकदामात को खुश आइन करार दे दिया। जग में सीवरेज के निजाम में बेहतरी लाने का प्लान। मेगा प्रोजेक्ट टोबा रोड पर 36 इंच डाया की सीवरेज लाइन पर
दोबारा काम का आगाज कर दिया गया। जंग के बोसीदा सेवरी निज़ाम के हल के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर दोबारा काम का आगाज। मंसूबे के तहत शुगर मिल्क डिस्पोजल से टोबा रोड तक 48 इंच डाया की सेवरी लाइन का मुकम्मल किया जाएगा। 93 करोड़ के मंसूबे पर अदम अदायगियों के बाइस काम रुक गया था। ठेकेदार को 1 करोड़ से जायद फंड मिल गए। 5 करोड़ 80 लाख रुपए के बिल भी मंजूर। सेवरी निज़ाम में बेहतरी से सड़कों का पानी खत्म होगा। उजाला चौक से टैक्स ऑफिस टोबा रोड तक 42 इंच डाया की सेवरी लाइन का काम मुकम्मल। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से शहर की तरफ 36 इंच डाया पर काम जारी है। मंसूबे की तकमील से टोबा रोड पर सेवरी मसाइल हल होंगे। गली मोहल्लों में जमा होने वाले पानी से भी शहरियों को छुटकारा मिलेगा। सेवरी लाइन की मंसूबे की तकमील से जंग के बासियों को गली मोहल्लों में पानी जमा होने से छुटकारा मिलेगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41। चिन्योट में वापदा हुकाम की गफलत, सब्जी और फ्रूट मंडी में बिजली की लटकती तारें, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। वापदा हुकाम की नाअहली की बदौलत सर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारें किसी भी जानलेवा हादसे की मुंतजिर। चिन्योट सब्जी मंडी में बिजली की तारें अरसा दराज से लटक रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शहरी खौफो हिरास का शिकार होते जा रहे हैं। सदर सब्जी मंडी का कहना था कि हाई वोल्टेज तारें कई साल से ऊंची नहीं की जा सकी, जो किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती हैं। निगरान वजीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि मौजूदा सूरत हाल पर फिलफोर एक्शन लें। बिजली का निज़ाम सारा धर्म भरम है। जब कोई गाड़ी वगैरह बैग होती है और ये तारें टूट जाती हैं, टूट जाने के बाद हादसे का शिकार कई दफ़ा हो चुका है। बहुत दिन नुकसान हो चुका है। इसके लिए मैंने एप्लीकेशनें भी दी हैं। डीजी पामरा भी यहाँ तशरीफ लेके आए तो उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, उन्हें भी दरख्वास्त दी, अपने दफ्तर में भी दरख्वास्त दी है, फैसको को भी दरख्वास्त दी, फैसलाबाद तक हमने दरख्वास्तबाजी की है, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। शहरियों के साथ मंडी में सब्जियों और फलों की गाड़ियों का आना भी मुश्किल हो गया है। बिजली की लटकती तारों का मसला फिलफोर हल किया जाए। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 30 जामियात मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम, सरबराह न होने से यूनिवर्सिटी के इंतजामी और माली मामलात मुतासिर। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 30 जामियात मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम, सरबराह न होने से यूनिवर्सिटियों के इंतजामी और माली मामलात मुतासिर। अबूरी हुकूमत में भर्तियों पर पाबंदी के बायस 1 साल से तैनातियों का मामला ज़ेर अल्तवा। फैसलाबाद डिवीजन की 4 यूनिवर्सिटी समेत पंजाब भर में 30 जामियात के मुस्तकिल सरबराह न होने से इंतजामी उमूर मुतासर होने लगे। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम है। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग और यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया में वीसी के ओहदे पर कोई मौजूद नहीं। तालीमी हलकों ने मुतालबा किया कि नई हुकूमत यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की तैनाती को अपनी तरजीहात में शामिल करे। जंग में एपिलेप्सी का आलमी दिन, DHQ अस्पताल में 1 साल में 1000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। एपिलेप्सी यानी मिर्गी के मर्ज के बारे आगाही का आलमी दिन आज मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों को मर्ज से बचाव और इलाज बारे आगाही दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक 1 साल के दौरान 1000 से ज्यादा मरीज अस्पताल आए। डॉक्टर गुलाम शबीर मलिक का कहना था कि एपिलेप्सी काबिल इलाज मर्ज है। मिर्गी आमतौर पे 2 तरह की है, एक प्राइमरी एपिलेप्सी यानी मिर्गी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी है कि जिसमें हमारे पास कोई बज़ाहिर वजह नहीं है, ब्रेन का कोई भी हिस्सा हाइपर एक्टिवेट होकर अपनी अलामतें जिस्म पे मसल्स के हिलने की सूरत में देना शुरू कर देगा। या सेकेंडरी होगी कि दिमाग की कोई चोट लगी या दिमाग के कोई ऑपरेशन हुआ, कोई गिल्टी रसौली खुदा न खास्ता निकल आई, उसकी वजह से दिमाग का हिस्सा मुतासर हुआ और वो झटकों, दौरों का और एपिलेप्सी का बायस बना। डॉक्टर्स के मुताबिक मिर्गी में मुब्तला मरीज जादू टोने के बजाय किसी अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर्स को चेक करवाएं। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। और अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में वाइट कोट तकरीब का एहतमाम किया गया। अजीज फातिमा अस्पताल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में वाइट कोट तकरीब का इनेकाद किया गया। MBBS में दाखिला लेने वाले तलबा और वालिदैन की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। मैनेजिंग ट्रस्टी और CEO सितारा केमिकल मियां अदरीस ने खसूसी शिरकत की। कहा, तलबा की हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीबात का इनेकाद जरूरी है। यही मकसद है उन पेरेंट्स को भी यकीन दहानी कराना कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में आए हैं वो इंस्टीट्यूशन एक रिस्पॉन्सिबल है, एक कस्टोडियन है। वो चाहे बच्चियां हों चाहे बच्चे हों, हमने उन पे ना सिर्फ के एजुकेशन के लिए, उनके करैक्टर बिल्डिंग के लिए, उनकी एथिकल मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उनको उन तक पहुंचाने के लिए हमने अपना काम, अपना रोल अदा करना है। रिटायर्ड जनरल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम और ट्रस्टी मियां अब्दुल्ला भी शरीक हुए। प्रिंसिपल अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मोहम्मद सईद ने तकरीब में इजहार ख्याल किया। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। अपडेट रहें और देखते रहें सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं बातें सब